Hello, this is Qasim Zamil here. I'm the CEO and founder of Study 360. Study 360 basically is a consulting firm that helps you with your education consulting and visa consulting, and we also offer immigration and career counseling as well. Just a brief intro. After spending about 11 years in US, I decided to start this firm basically to help the students that have, because I went to US as a student myself, so I understand how the process works and understand the know-hows and the basically the tips and tricks of getting a US visa and how to have a good career in US as well. I'm a mechanical engineer by profession. So basically what we do is we'll help you get admission in top universities in USA, and we'll also help you get scholarships as well. Along with, we'll also guide you different living expenses in different states, because we have a research team in Texas, USA, where our headquarters is, and we'll help and the research team will help the clients to get admissions in different universities and have the local representation you're looking for. This The clip you're about to see with this video is basically we had a seminar, a webinar actually. This was focused on the career opportunities for different students and what they can see and what they can perceive while in US, and the different steps they can take before they plan to go to US, because different certifications go a long way. Your better communication skills, anything that adds up to your profile, to your portfolio, is always a plus. So basically the clip that's along with this video is basically a part of that webinar we did. And if you are looking to get more information on the webinar, on our services, or you like to have any queries regarding USA visas, any kind of visas basically, feel free to visit our website. The links will be given at the bottom of the video. And also we also offer services to countries like Canada, Australia, Germany, and UK as well. So please explore our website, get in touch. Even if you have a query, you're not planning now, maybe in a year, but you still want to get some information, feel free to schedule a free session from our website, and we'll be happy to help you and assist you in any way, in the best way we can. Thank you. मैं लैंड कर सकूं जॉब को वहां पे एज ए रिमोट पार्टी या एज ए रिमोट कंसल्टेंट या एज ए रिमोट टीम मेंबर। तो अगर मैं एक तो सबसे पहले ये बताइएगा कि यूएसए में क्या रिमोट पॉसिबिलिटीज निकलती हैं जिसको हमारे यहाँ पे लोग जो है क्रैक कर सकें। वन क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर निकलती हैं तो आप क्या वहाँ पे प्री रेक्विजिट्स देखते हैं? जैसे आपने अभी बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की थी, आप क्या एक प्री रेक्विजिट देखते हैं कि वन शुड हैव इन इट अगर वो क्रैक करना चाह रहा है ऑफ द रिमोट जॉब ऑफ द यूएसए? देखिए, डेफिनेटली काफी कंपनीज ने, इवन लिंक्डइन पे अगर आप जाएं तो दे इवन हैव अ लोकेशन रिमोट, उन्होंने एक रिमोट लोकेशन का फिल्टर ऐड कर दिया है। तो डेफिनेटली दैट शोज कि एक बहुत ज्यादा एक डाइवर्जन हुई है मार्केट की रिमोट जॉब्स की तरफ। उसमें डेफिनेटली ये है कि आपके पास, अगर आप पाकिस्तान से बैठ के यू आर प्लानिंग टू अप्लाई इन यूएसए एक रिमोट पोजीशन के लिए, तो डेफिनेटली आपकी जो यहाँ पे एजुकेशनल स्किल्स हैं और जो यहाँ पे आपकी ग्रूमिंग हुई है वो आपकी है पाकिस्तान के हिसाब से। एंड डेफिनेटली जैसे आप मेंशन कर रहे थे, जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का कोर्स है, दैट डेफिनेटली हेल्प्स यू एक आपको शेप करने में कि अमेरिका में कैसे ईमेल कम्युनिकेशन है, कैसे वहां पे इवन रेज्यूमे का फॉर्मेट अलग आ जाता है। तो उसके अंदर काफी आपको जो एक बिल्कुल आप कहें कि पाकिस्तान और अमेरिका का जॉब एनवायरनमेंट एक जैसा होगा, बिल्कुल गलत बात है। आपका जॉब एनवायरनमेंट डिफरेंट है, वहां पे एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं। आपका मीटिंग में प्रेजेंट होना या एक प्रेजेंटेशन देना पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आपकी स्पोकन इंग्लिश पे होना चाहिए। मैं एक्चुअली शेयर करता हूँ जो हम लोग डिफरेंट सर्विसेज वगैरह अभी ऑफर कर रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा आइडिया होगा कि अगर आप, हाँ ये देख, तो इसमें बेसिकली ये, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको, जैसे अब हम लोग कम्युनिकेशन में आते हैं तो वहां पे ऑब्वियसली एंटायर कम्युनिकेशन इज इन इंग्लिश, ठीक है। तो आपको फिर एक इंग्लिश आ जाती है जो एक फॉर्मल है और फिर इनफॉर्मल है।
Right. फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपकी टेक्निकल राइटिंग है, आपकी प्रेजेंटेशन है, आपकी रेज्यूमे है, ईमेल राइटिंग है, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जैसे आप मीटिंग में कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द मीटिंग जब आप एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं वो एक डिफरेंट आ जाता है, और जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो एक डिफरेंट फैक्टर आता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आप पाकिस्तान में अगर पढ़ रहे हैं, आपने पाकिस्तान की एजुकेशन लिया है, आप प्लान कर रहे हैं कि यू वांट टू वर्क इन यूएसए एज अ रिमोट पोजीशन, तो आप वो टैकल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो ग्रूमिंग है वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो डेफिनेटली अगर आपको अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंट कंट्री है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, आई वुड रिकमेंड कि डेफिनेटली यू नीड टू हैव दैट प्लेटफॉर्म विद यू, हैव दैट पाथ विद यू, कि आप समझ सकें कि भाई वहां पे काम कैसे होता है। और वही चीजें हैं जो हम लोग अपने कोर्स में कवर करेंगे, कि आपको हम प्रिपेयर करेंगे कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कैसे यूज करते हैं वहां पे, और कैसे वहां पे काम और वर्क एनवायरनमेंट देखी जाती है। ब्रिलियंट। अच्छा, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उसके बाद जो है हम जनरल ऑडियंस की तरफ जाते हैं अगर उनका कोई सवाल हो। सॉरी। बेसिकली एक जैसे मैंने एक मिसकंसेप्शन की बात की थी यूएसए के हवाले से स्टार्ट में, और उसी कंपोनेंट को अगर हम लेके चलें, एक स्ट्रेच करके चलें, तो एक एक ट्रैक, एक एंड टू एंड ट्रैक एक प्रोफेशनल का हु इज लुकिंग फॉरवर्ड कि वो आज से अगर कोई मेजर्स लेना स्टार्ट करना चाह रहा है, लेट्स से इट्स ए लॉन्ग टर्म जर्नी, बट नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म जर्नी, लेकिन एक प्लानिंग करनी पड़ती है, एक पूरा उसका लेआउट बनाना पड़ता है। तो एक किस तरीके से, इफ आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, इफ आई एम वर्किंग इन एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से XYZ, और अगर मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स से यहाँ पे काम करूँ जो कि अमेरिका में एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे बहुत सी टाइटन ऑर्गेनाइजेशन यूएसए की ऐसी हैं जो कि पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने पाकिस्तान, वियतनाम, चाइना में रखी हुई है, और वहाँ पे उनका सिर्फ फ्रंट डिटेल्स हैं। तो अगर मेरा ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, तो मैं किस तरीके से वहाँ पे जब मास्टर्स के बाद जाऊँगा या वहाँ पे लैंड करता हूँ, तो मेरे क्या ये स्किल सेट मुझे किस तरीके से वहाँ पे फायदा दे सकते हैं? ये स्किल्स डेफिनेटली आपको, जो आपने स्किल्स लर्न किए हैं वो डेफिनेटली आपको एज देंगे। लेकिन अगेन आपको वहां पे एक जाके एक प्रेजेंट होना, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ऑल दिस टाइम यू, इवन दो यू आर वर्किंग विद अ यूएस कंपनी, लेकिन आप काम पाकिस्तान में कर रहे थे। द डीलिंग यू वर डूइंग वाज बेसिकली इन पाकिस्तान। आपकी लोगों के साथ एनवायरनमेंट ऐसा था, लोगों के साथ एनवायरनमेंट मतलब जो डीलिंग थी वो पाकिस्तान में थी। जब आप अमेरिका में, जिस वजह से हम रेकमेंड कर रहे हैं कि आप मास्टर्स वाला राउट लें, वो बेसिकली ये है कि ऑब्वियसली मतलब इतना लेंथी राउट नहीं है, 2 साल का मास्टर्स है, लेकिन वो बेसिकली थोड़ा लेंथी, आप इस हिसाब से कह सकते हैं कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यू आर अर्निंग एंड एवरीथिंग, एंड यू हैव टू पुट अ स्टॉप टू इट, एंड यू हैव टू मूव। और फिर वहां पे आपकी अर्निंग इनिशियली नहीं है, आप अपने आप की मतलब स्टडीज कंप्लीट करेंगे एंड देन यू स्टार्ट अर्निंग। तो डेफिनेटली वो जो एक टाइम फ्रेम है 2 इयर्स का जिसमें आप अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। वो बिल्कुल इस तरह है कि आप एक, जब आप किसी बेहतर चीज की तरफ जाते हैं, इवन पाकिस्तान में भी कहीं पे भी वर्क एनवायरनमेंट में, आप गवर्नमेंट जॉब्स ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, आपने अगर प्रमोशन लेनी है तो आपको कांस्टेंट कोई टेस्ट देने पड़ते हैं, आपको कांस्टेंट कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिग्री या कुछ उनको प्रोवाइड करना पड़ता है टू शो इट टू देम कि ठीक है भाई, मैं आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग मोर देन आई एम डूइंग राइट नाउ। तो उसमें भी ज़ाहिर आपको टाइम लगता है। तो ये सिर्फ एक पाकिस्तान का नहीं, ये तो एक वर्ल्ड वाइड, अमेरिका में हर जगह वो जो चीज़ बेहतर की तरफ आप जाते हैं तो थोड़ा आपको टाइम भी लगता है उस चीज़ को बिल्डअप करने में। लेकिन ऑब्वियसली यू हैव एन एंड गोल कि आपका वहां पे करियर सेट होना है, एंड आई कैन अश्योर यू कि एक दफा आपके पास अमेरिका की डिग्री आ जाए, आई कैन गारंटी यू कि आपको वहां पे जॉब मिल जाएगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आई हैव बीन इन और द क्लाइंट्स आई हैव वर्कड विद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महीने से ज्यादा कोई आफ्टर ग्रेजुएशन घर नहीं बैठा, उसको जॉब मिल गई है इन लेस देन अ मंथ। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से गारंटीड बात कर रहा हूँ। लेकिन अगेन बात वो है कि यू नो हाउ टू पुट योर सेल्फ आउट देयर। अगर आप कहें कि मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, मैं घर बैठ जाऊं, मैं कहीं अप्लाई ना करूं, मुझे जॉब नहीं मिल रही, देन दैट्स ऑन यू। आप इफ देखिए, अमेरिका में मैं हमेशा जो बात कर रहा हूँ बार बार कि अमेरिका में इफ यू नो हाउ टू पुट योर सेल्फ आउट इन द मार्केट, इफ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट, इफ यू नो इफ यू हैव द राइट कनेक्शंस, और ये कनेक्शंस है पाकिस्तान वाले नहीं, वहां पे जो कनेक्शंस हैं दे बेसिकली टेक योर रेज्यूमे अप टू द HR पर्सन,
उसके बाद जो है वो सारा आपका है। वहां पे इवन अगर आप कनेक्शंस भी लगाते हैं तो वो सिर्फ उस हद तक लगते हैं। बाकी जो है वो आपका पर्सपेक्टिव है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपका अपना कॉन्फिडेंस है, जिस हम्म, तरह आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और किस तरह आप अपने आप को वहां पे अपने स्किल्स ब्रॉडकास्ट करते हैं। क्योंकि स्किल्स, अब किसी के पास काफी स्किल्स होते हैं लेकिन उनके पास कोई फिजिकल उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता अपने स्किल्स शो करने के लिए, एग्जैक्टली। तो वो भी उनके लिए एक माइनस में चला जाता है, नेगेटिव है उनके लिए। क्योंकि वो अगर वहां पे कंपनी में गए हैं, द इंटरव्यूअर आस्क्ड देम कि ठीक है आपके पास, आपने कहा ये स्किल आपको आता है, प्लीज ब्रॉडकास्ट योर स्किल, तो आप कैसे करेंगे जब आपने पर्सनली कभी स्किल वो अपना खुद ही एक्सप्रेस नहीं किया। तो आप वहां पे इंटरव्यू में जब आपके पास स्ट्रेस प्रेशर भी होता है ऑब्वियसली, तो वो आपको प्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक हम्म, जो एक प्लेटफॉर्म आपको वहां रहने से मिलता है वो आपको डायरेक्ट यहाँ जाने से उस तरह नहीं मिल पाता। ओके। एक क्वेश्चन जी रिसीव हुआ है मुझे अपने पर्सनल उस पे, और वो हम्म, ये है कि लेट्स से, जैसे कि आपने स्टार्ट में बात की थी, वो स्टार्ट से रेफर कर रहा है वो क्वेश्चन, कि अगर इनिशियल रिसोर्सेज थोड़ा सा फीस का आइडिया दे दें पर एनम, अगर हम मास्टर्स की बात करें, और ऐसी स्टेट्स का स्पेसिफिकली जहाँ पे इकोनॉमिकल मास्टर्स है, राइट? ठीक है। और अगर वहाँ पे लैंड करता है, अगर एक प्रोफेशनल लैंड करता है, तो वहाँ पे क्या जो स्टूडेंट जॉब्स अवेलेबल होती हैं वो करके कैन वन मीट हिज ओन एंड्स? ठीक है, अब देखें जो एक फीजिबल, मैं आपको थोड़ा बहुत जो बता सकता हूँ, जो स्टेट्स आ जाएंगे वो आपके टेक्सास, मिनिसोटा, फिलाडेल्फिया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क। लिविंग एक्सपेंसेस काफी महंगे होते हैं इसलिए मैं न्यू जर्सी की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा आपके नहीं, वॉशिंगटन स्टेट महंगे। अच्छा, उसके अलावा आपका एरिजोना, ठीक है, और मैसाचुसेट्स। ये कुछ स्टेट्स हैं जिसमें आपको एक मिशिगन, सॉरी मिशिगन में मिस कर दिया, दैट्स द हम्म, ऑटो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एटलीस्ट ऑफ द राइट। यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो ये है कि ये जो स्टेट्स है ना, इनमें आपका इफ यू आर लुकिंग एट मास्टर्स, अगर आपको डिसेंट अच्छी यूनिवर्सिटी में चाहिए, मैं अच्छी यूनिवर्सिटीज वो कह रहा हूँ कि जो रिकग्नाइज्ड हो, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज हो। क्योंकि ऑब्वियसली आपने सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, आपने आगे जॉब भी लेनी है, एंड गोल जैसे है। एग्जैक्टली। तो उसमें आपको यू कीप इन माइंड कि आपका मिनिमम 17 to 18,000 डॉलर्स पर ईयर आपकी फीस होगी, ट्यूशन फीस। ठीक है। अब उसमें इट कैन गो अप, वो तो आप 20, 30, 40, 50, 70,000 तक भी जा सकते हैं। तो देयर इज नो लिमिट बेसिकली ऑन दैट। तो मिनिमम 17, 18,000 डॉलर्स। एंड अगेन, ये जो मैंने स्टेट्स थोड़े लिस्ट आउट किए थे, इन स्टेट्स में डेफिनेटली अगर आपकी इतनी फीस है, यू कैन अबाउट 20,000 भी है ना फीस, यू कैन मैनेज इट। वहां पे आपको, आप काम करके अगेन आपको वहां पे आवरली पे मिलती है। तो जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया था कि आवरली पे है, आप हफ्ते में 10 घंटे काम करेंगे, आपको 10 घंटे के पैसे मिलेंगे, सिंपल एज दैट। वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये प्रोसेस है। ये नहीं कि आपने 12 12 घंटे हो गए आप काम कर रहे हैं, आपको कोई सैलरी नहीं मिल रही, कोई हिसाब किताब नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जो हम्म, मेहनत की है आपको उसका रिजल्ट मिलता है, एक दिन, अगले दिन नहीं, हफ्ते के अंदर मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको सालों साल वेट करना पड़ेगा टू सी योर टेंजिबल रिजल्ट। जैसे मैंने डिग्री की बात की कि भाई ग्रेजुएट हुए, महीने के अंदर अंदर जॉब मिल गई है, तो वो नहीं है वहां पे कि आपको सालों साल किसी चीज के लिए वेट करना पड़ता है। इफ यू आर रेडी टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, आप अपनी मेहनत करें, अपनी एजुकेशन पे साथ अपने आप मैनेज, फाइनेंसेस मैनेज करना चाहते हैं, डेफिनेटली मैनेजेबल हैं। स्पेशली मास्टर्स की जो पढ़ाई होती है, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज 2 दिन हफ्ते में क्लासेस देती हैं। हम्म, वो राइट। 4 to 5 आवर्स की क्लासेस हैं। उसके अलावा जो आपके पास टाइम है, एंड अगेन दैट्स ऑन यू। अब बाकी आपके पास जो हफ्ते में 5 दिन है, आप उसमें काम कर सकते हैं, अपना आराम से लिविंग एक्सपेंसेस, फीस मैनेजिंग, सेविंग्स करना चाहें सेविंग्स कर लें, दैट्स ऑन यू। वो आपके पास 5 दिन आपको मिल जाते हैं। चले आप एक दिन अगर असाइनमेंट्स के लिए रखना चाहते हैं तब भी मैनेजेबल है। जो मास्टर्स में ये आ जाता है, क्योंकि वहां पे जो मास्टर्स की पढ़ाई है बहुत ज्यादा यूजर एंड पे, मतलब स्टूडेंट एंड पे फोकस किया जाता है। वो हम्म, असाइनमेंट्स होती हैं, डेडलाइंस होती हैं, लेकिन काफी हद तक पढ़ाई जो है और इवन जो आपको प्रोफेसर जो आपको एंटरटेन करेंगे वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट एंड पे फोकस होता है उनकी स्टडीज का।
अगेन ये वो चीजें हैं जो आपको फिर आप जब आप खुद अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद आप लर्निंग कर रहे हैं उसमें, तो ये है कि वो चीजें आप वो स्किल्स भी, वो चीजें भी एक स्किल है कि आप खुद अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि आपको एक टीचर ने आके कह दिया कि भाई आज दिन में ये पढ़ना, ये होमवर्क करके कल ले आओ, कंपेयर टू वो पढ़ाई एंड कंपेयर टू समथिंग जो आपने खुद मैनेज करनी है, वो चीज भी लर्न करना एक स्किल है। जब वो चीज आपके पास आ जाती है, व्हेन यू आर गोइंग टू अ वर्क फोर्स, आप वो स्किल्स लेके आगे जाते हैं। आपको कोई टास्क मिलता है तो आप कर सकते हैं। मेरे एक प्रोफेसर थे, वो अक्सर कहते हैं कि जो इंजीनियर्स हैं दे आर क्रिटिकल थिंकर्स। आपको फॉर्मूलों का रट्टा नहीं लगाना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वो काम करना कैसे है। सिंपल एज दैट। ये नहीं जरूरी है कि आप फॉर्मूले का रट्टा लगाएं, किताबें रटी हुई हैं और आपको फिजिकल काम नहीं करना था। आपको ये स्किल आना चाहिए कि आपने वो काम करना कैसे है। ये काम है एज एन इंजीनियर, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वही चीज है कि स्किल आप जरूरी नहीं होता कि आपने अकाउंटिंग आपने की है तो आप मतलब इतनी मतलब, या फिर आप ऑफिस असिस्टेंट की जॉब करें तो आप इतने वर्ड्स पर मिनट टाइप कर सकते हैं, या आपको ये आपको ये आता है। स्किल्स काफी हद तक कभी नॉन टेंजिबल भी आ जाते हैं। तो ये जो एक एनवायरनमेंट आपको मिलती है और जो एक आपको प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें आप अपने आप को पर्सनैलिटी आप डेवलप करते हैं, आप अपने करियर डेवलप करते हैं, तो वो नॉन टेंजिबल स्किल्स हैं, लेकिन वो डेफिनेटली आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करते हैं। चलो, साउंड्स गुड। थैंक यू वकास फॉर योर काइंड टाइम। मेरे पास कुछ जो 3-4 सवाल आए थे वो मैंने पॉइंट आउट किए। एंड नाउ वी विल सी कि अगर कोई हमारे करंट अटेंडीज का सवाल है, क्योंकि कुछ प्रोफेशनल्स ड्रॉप आउट हो गए थे ड्यू टू सम कमिटमेंट्स, फिर उन्होंने मुझे इंडिविजुअल मैसेज सेंड कर दिए थे। जी, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? आई बिलीव मैक्सिमम क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी ये जो वेबिनार है ये हम शेयर भी कर देंगे अपनी ऑडियंस के साथ, राइट? So thank you so much, Waqas, for your time. It was a thank you again. brilliant. Thank you everyone for joining, session. and it was pleasure talking to you, Babar, as well. Thank you very much.